नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के कनकट ग्राम में आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण। 2 मार्च को सागर खंडरे और डॉक्टर एमजी मूडे का सम्मान समारोह। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 2 और विधेयक लौटाए, सरकार से पुनर्विचार करने को कहा। गारंटी भुगतान में देरी पर जेडीएस के निखिल ने पूछा, क्या खजाने में पैसा नहीं है। भाजपा जेडीएस ने बजट सत्र में जल्दबाजी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के कनकट ग्राम में आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और मंत्री रहीम खान ने किया। मूर्ति के अनावरण के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, एमएलसी भीमराव पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, डीसीसी के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। मंत्री ईश्वर खंडरे ने समारोह में संबोधन किया। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। विश्वगुरु बसवಣ್ಣನವರಿಗೂ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ತೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ವೀರ ರೇಣುಕಾ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಶಂಡ್ರವರಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕೋಲಾರ ಸಚಿವರು ಮಿತ್ರರಾದಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಫ್ಸರ್ ಮಿಯಾ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಟೈಗರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆದಂತ ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಯುವಕ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ ಸಿದ್ಧ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ರಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಓಂಕಾರ್ ತುಂಬಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ್ ಚೌಹಾಣ್ ರವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬುಳ್ಳಾರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಪಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। 2 मार्च को सांसद सागर खंडरे और एमएलसी डॉक्टर एमजी मूडे का सम्मान समारोह का आयोजन करने की बात दिगंबर राव मनकेरी ने कही है। वह आज शहर के पत्रिका भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को सुबह 11:30 बजे शहर के सरकारी कर्मचारियों के सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस अवसर पर स्वागत एवं आतिथ्य समिति के अध्यक्ष अशोक राव कंजीकर, सचिव वेंकटेश मेहंदे, समुदाय के नेता जनार्दन बिरादर, शंकरराव पाटिल, तात्या राव पाटिल, पंचशील पाटिल, रंजीत पाटिल और विद्यावान पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। पत्रिका बंधुಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 2
3/3/2024 ಅಂದರೆ ನಾಡ್ದು 25ರಂದು ರವಿವಾರ ದಿವಸ ಈ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को राज्य सरकार को 2 और विधेयक लौटा दिए तथा उनसे पुनर्विचार करने और कुछ संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत करने को कहा। कर्नाटक सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2024 और कर्नाटक सौहार्द सहकारी संशोधन विधेयक 2024 को राज्यपाल ने यह कहते हुए लौटा दिया कि सरकार द्वारा पहले प्रस्तुत विधेयकों के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। सरकारी समितियों पर विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताते हुए गहलोत ने कहा, मेरा मानना है कि सभी मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देना सही कदम नहीं है, इससे उन्हें समिति पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाएगा। यह लोकतांत्रिक रूप से सही कदम नहीं है क्योंकि निर्वाचित सदस्यों के अधिकार पिछले दरवाजे से छीन लिए जाएंगे। यह सहकारी क्षेत्र की लोकतंत्र स्वायत्तता को कमजोर करने वाला कदम है। इस मामले पर फिर से विचार कर रहे राज्यपाल ने यह सभी कहा कि वित्तीय बोझ का हवाला देकर सहकारी चुनाव प्राधिकरणों को खत्म करने का प्रस्ताव अनुचित होगा। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। गहलोत ने सरकार को फिर से विचार करने और संशोधन के साथ विधेयक पेश करने की सलाह दी। राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जेडीएस यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कहा था कि वे हर महीने गारंटी योजनाओं के लिए पैसे देंगे, उन्होंने लोगों को धोखा दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या खजाने में कोई पैसा नहीं बचा है या फिर सीएम सिद्धरामैया को खजाने के प्रबंधन का अनुभव नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा था कि वे गृहलक्ष्मी योजना के माध्यम से धन सहित गारंटी प्रदान करेगी। हालांकि लोगों के खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने यह बताने दे कि वे किस दिन गृहलक्ष्मी योजना का पैसा जमा करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद कैलेंडर ले लेंगे, उन्हें तारीख अंकित करने दें। निखिल ने आरोप लगाया कि राज्य की महिलाएं भ्रमित हैं क्योंकि उक्त पैसा हर महीने उनके बैंक खातों में जमा नहीं हो रहा। सरकार अपनी मर्जी के अनुसार पैसा जमा कर रही है। जब चुनाव आते हैं तो वे 3-4 महीने का पैसा एक साथ जमा कर देते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर चुनाव जीतने के लिए गारंटी अनुदान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी के जरिए लोगों को धोखा दे रही है। हम विधानसभा के अंदर और बाहर इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि सरकार किस तरह से उन्हें धोखा दे रही है।
कर्नाटक बजट सत्र को मात्र 15 कार्य दिवसों में ही समाप्त कर दिए जाने से भाजपा और जेडीएस नाराज हैं। उनका कहना है कि यह विधायी विचार विमर्श को पूरी तरह से खारिज करने जैसा है। नेताओं का तर्क है कि विभिन्न विभागों की विस्तृत मांगों की जांच करने के लिए सावधानीपूर्वक चर्चा की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। 3 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद श्रद्धांजलि और बहस के बाद बजट का विश्लेषण करने के लिए केवल 10 दिन बचे हैं, जिसे 7 मार्च को पेश किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस पर तीखा हमला करते हुए कहा, इस सरकार का उचित विधायी सत्र आयोजित करने का कोई इरादा नहीं है। अकेले बेंगलुरु में ही 2 से 3 दिनों में बहस की जरूरत है। बेलगावी को देखे, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय नहीं है। उनके पास विकास के लिए भी धन नहीं है। वे किस बारे में बात करेंगे? हावेरी के सांसद ने कहा, आग में घी डालने का काम करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति के कथित तौर पर खस्ता हाल में है। कर्नाटक के इतिहास में पहले ही सभी इतने खराब स्थिति नहीं रही। ऐसे संकट के समय बजट का अभूतपूर्व महत्व है, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र धर में लटके हुए हैं, फिर भी सरकार इस बहस को दबाने पर आमदा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऐसे समय में जब कृष्णा बेसिन के विधायकों ने कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड के BJNL के अधिकारियों को पीने की जरूरतों के लिए जून तक अलमट्टी जलाशय में पानी जमा करने का निर्देश दिया, तेलंगाना को 1.24 TMCFT पानी छोड़ने के सरकार के फैसले की किसानों द्वारा आलोचना की जा रही है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य के अनुरोध पर कथित तौर पर अलमट्टी और नारायणपुरा जलाशयों से तेलंगाना को 1 TMCFT पानी छोड़ा है। गर्मियों के लिए संग्रहित किया गया पानी गूगल बैरेज और उसके बाद रंगारेड्डी जिले के बांध में छोड़ा गया। अलमट्टी बांध क्षेत्र के मुख्य अभियंता डी बसवराज ने पुष्टि की है कि नारायणपुर बांध के माध्यम से तेलंगाना को 1 TMCFT पानी छोड़ा गया। हमने सरकार के आदेश के अनुसार पानी छोड़ा है। तेलंगाना सरकार ने राज्य सरकार से पानी के उद्देश्य के लिए 5 TMCFT पानी छोड़ने का अनुरोध किया। हालांकि हमारे पास उनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए सरकार ने 1 TMCFT पानी छोड़ने का फैसला किया। पूर्व भाजपा मंत्री MP रेणुकाचार्य ने गुरुवार को वीरशैव लिंगायत नेताओं की एक बैठक की और राज्य भर में समुदाय के नेताओं को संगठित करने के लिए दौरे पर जाने का फैसला किया। उनके दौरे का उन्हें उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि राज्य में सत्ता में आने के लिए पूर्व सीएम येदियुरप्पा के नेतृत्व में एकजुट रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह बैठक येदियुरप्पा के घर पर हुई। रेणुकाचार्य और उसकी टीम ने अगले महीने बेंगलुरु में लिंगायत वीरशैव समुदाय का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने का भी फैसला किया, जिसका नेतृत्व कई साधु संत करेंगे, ताकि यह बात लोगों तक पहुंचाई जा सके कि राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र समुदाय के उभरते नेता हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेणुकाचार्य ने कहा, शुक्रवार को नीलमंगला ने अपने राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक के बेल्लारी, चिकबल्लापुरा और रायचूर जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि रायचूर के मानवी तालुका, चिकबल्लापुरा के चिकबल्लापुरा तालुके और बेल्लारी के संदूर तालुके में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं। हालांकि अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक मनुष्यों में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों ने PTI भाषा को बताया कि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने मृत पक्षियों के नमूने एकत्र कर भोपाल स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे, जहां पुष्टि हुई पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई। आज विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक HR गवियप्पा, विजयनगर के जिला प्रभारी मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के साथ मिलकर हम्पी उत्सव 2025 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, स्टॉलों और खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विजयनगर के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और नेतागण तथा स्थानीय लोग आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के कनकट ग्राम में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण। 2 मार्च को सागर खंडरे और डॉक्टर MG मूड़े का सम्मान समारोह। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 2 और विधेयक लौटाए, सरकार से पुनर्विचार करने को कहा। गारंटी भुगतान में देरी पर जेडीएस के निखिल ने पूछा, क्या खजाने में पैसा नहीं है।
भाजपा जेडीएस ने बजट सत्र में जल्दबाजी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।